السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائی علیزہ آیت پارٹ 4۔ جہاں سے وہ خان وال سے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ بی جان بے حد پریشان تھی۔ وہ جہاں سے شادی کی بات کرنا چاہتی تھی، مگر تب سے گیا واپس ہی نہیں آیا تھا۔ افرا کے والدین بھی واپس حویلی جا چکے تھے، مگر علیزہ کی ضد پر انہوں نے افرا کو ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ علیزہ سب سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی اور مقدم بھی اب اسے بہت کم تنگ کرتا تھا۔ آج کل وہ آفس سے لیٹ آ رہا تھا، اس لیے جب وہ آتا تو علیزہ سوئی ہوئی ملتی۔ وہ اس سے کافی خفا بھی رہنے لگ گئی تھی۔ اسے مقدم کی عادت ہو گئی تھی، مگر وہ رات دن ایک کی خاور اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ علیزہ افرا کے ساتھ ہر وقت مستی کرنے میں مگن رہتی تھی۔ پورے گھر میں علیزہ کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم اور حالم صاحب تو اپنی بہو کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مقدم کا ارادہ آج جلدی گھر آنے کا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنا کوٹ پہنے آفس سے نکل گیا۔ مقدم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ ابھی وہ قدم آگے بڑھاتا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگاتا دانت کی بات سننے لگا۔ علیزہ اور افرا چھت پر غباروں میں پانی بھر کر ایک دوسرے کو مارنے میں مصروف تھی۔ تبھی افرا نے ایک غبارہ علیزہ کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کی کمر پر لگا۔ اب وہ افرا کو گھور رہی تھی۔ علیزہ نے بھی ایک پانی سے بھرا ہوا غبارہ پکڑا اور افرا کی طرف بڑھی تو افرا نیچے کی جانب بھاگی، جبکہ علیزہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ افرا بھاگتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے تک آئی اور دیکھا سامنے مقدم کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ افرا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ علیزہ نے افرا کو ایک جگہ رکے دیکھ کر غبارہ اس پر مارا، مگر افرا فوراً پیچھے جھک گئی، جس کی وجہ سے غبارہ سیدھا مقدم کے سر پر جا لگا۔ افرا تو 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر وہاں سے بھاگی، جبکہ علیزہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ایک دم ہوش میں آتی افرا کے پیچھے بھاگی۔ مقدم جو دانت سے بہت ضروری بات کر رہا تھا، ایک دم پڑنے والے غبارے سے اس کی شرٹ اور فون پانی سے بھیگ گیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ وہ حیران اور پریشان یہ سوچ رہا تھا یہ ہوائی غبارہ اسے کہاں سے آ کر لگا۔ مقدم فون بند کرتا اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ تمہاری وجہ سے ہوا یہ، اب میں روم میں کیسے جاؤں؟ انہیں پتہ چل جائے گا۔ علیزہ پریشانی سے مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ بھابی آپ میرا کوئی ڈریس پہن لیں، بھائی کو شک نہیں ہوگا۔ افرا نے اپنا حل پیش کیا۔ نہیں، تمہارے اور میرے کپڑوں میں فرق ہے یار، ان کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تم جاؤ اب میرے کپڑے لے کر آؤ روم سے۔ بھابی میں نہیں جا رہی، بھائی کو پھر مجھ پر شک ہو جائے گا، افرا نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ رہنے دو تم جا رہی ہو، میں خود ہی ڈرتی نہیں ہوں ان سے، میں تمہارے بھائی سے، علیزہ بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہائے اللہ، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ مجھے دیکھ کر انہیں شک ہو جائے گا۔ علیزہ کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں، میں کیوں جواب دوں انہیں؟ میں تو ناراض ہوں، پھر میں کیوں بات کروں ان سے؟ علیزہ خود سے عہد کرتی دھڑام سے دروازہ کھولتی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گئی، جبکہ واش روم سے نکلتا مقدم اس آندھی طوفان کو دیکھتا ہی رہ گیا، مگر کپڑوں پر دھیان نہیں گیا تھا۔ مقدم سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے بالوں میں برش کرنے لگا۔ علیزہ کپڑے چینج کر کے باہر نکلی تو مقدم کو شرٹلیس دیکھ کر ایک دم سرخ پڑی اور نظر جھکا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ مقدم کے پاس سے گزرتی آگے بڑھنے لگی تھی جب مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی شرٹلیس سینے سے آ لگی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی ایسے گھومتے ہوئے؟ علیزہ مزاحمت کرتے مقدم کو شرم بھی دلا رہی تھی، جو کہ کبھی آدھی تو تھی نہیں۔ مقدم نے علیزہ کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس پر جھکتا دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھتے فرار کا راستہ بند کر دیا۔ میرا اپنا کمرہ ہے، اپنی حق حلال کی بیوی ہے، پھر میں شرم کیوں کروں؟ مقدم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ مقدم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے علیزہ کی جان نکل رہی تھی۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، علیزہ اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرا دیا۔ میری جان، مقدم کو وہ روٹھی روٹھی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیوں جی، میں اپنی بیگم سے بات نہ کروں؟ تو آپ کو یہ اتنے دنوں میں نہیں یاد آیا؟ اب کیوں یاد آیا؟ علیزہ پھر خفگی سے بولتی چہرہ دوسری جانب کر گئی تھی۔ بلو کلر کا کرتا کیپری پہنے، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں نیلی ہی چوڑیاں پہنے، گلے میں جھمکا
झुमका डायमंड पहने, चमकता डायमंड पहने, रूठी रूठी सी मुकज्जिम के दिल में उतर रही थी। तो मैं मनाऊँ क्या? मुकज्जिम उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। अभी अलीज़ा कुछ बोलती मुकज्जिम ने एक हाथ उसकी गर्दन जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर में डाले अपने करीब किया और उसके होठों को अपनी कैद में ले गया। अलीज़ा फटी फटी आंखों से मुकज्जिम को देखने लगी, उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी। मुकज्जिम ने उसके दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर लॉक कर दिए। अब वो मुकम्मल इससे बेबस कर चुका था। मुकज्जिम के लम्स में इतनी शिद्दत थी कि अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मीच ली। उसकी सांस फूलने लगी थी। अलीज़ा की रुक रुक कर चलती सांसों का ख्याल करते मुकज्जिम ने नरमी से उसे छोड़ा और उसके एतराफ़ दोनों हाथ रखे बगौर उसे देखने लगा। वो सुर्ख चेहरा झुकाए अपने सीने पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसने एक बार भी मुकज्जिम की तरफ देखने की गलती नहीं की थी। वो फ़ौरन से नीचे उतरने लगी। मुकज्जिम ने उसे थामते ये भी नाकाम बना दिया। छोड़े मुझे प्लीज़, अलीज़ा ने उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों बेबी, अभी तो मैंने सही से तुम्हारी नाराज़गी भी दूर नहीं की। मुकज्जिम बोलता शिद्दत से उसका गाल चूम गया। प्लीज़ छोड़े मुझे, अलीज़ा का बस नहीं चल रहा था उधर से गायब ही हो जाती। नो बेबी, अब तो आप कहीं नहीं जा सकती, मुकज्जिम बोलता फिर से झुका। अभी वो उसके होठों पर झुकता अलीज़ा ने पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया और फ़ौरन उसके हिसार से निकलती कमरे से भाग गई, जबकि उसे अपने पीछे मुकज्जिम की ज़िंदगी से भरपूर कहकहा सुनाई दिया। उफ़, कितने बेशर्म है ये, इन्हें शर्म तो है ही नहीं। अनीस अपने सुरखालों पर दोनों हाथ रखे बड़बड़ाई और बीजान के कमरे की जानिब रुख किया। बीजान कमरे में बैठी जहांजेब से बात कर रही थी, जो यहाँ आने को बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैं नहीं आ सकता बीजान, प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमें कुछ नहीं मालूम। तुम बस कल सुबह ही मुझे यहाँ मौजूद मिलो। अगर तुम ना आए तो सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। उसे बीजान ने अब उसे धमकी दी। अभी वो जवाब देता कि उसे निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामुअलैकुम बीजान, कैसी है आप? अलीज़ा चहकती हुई बोली और उनके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलीज़ा की आवाज़ सुनकर जहांजेब की धड़कनें एकदम तेज़ रफ्तार में धड़क रही थी। अरे भाभी, आप यहाँ, मतलब भाई से बच गई? अफरा भी चहकती हुई कमरे में दाखिल हुई, जबकि उसकी बात पर अलीज़ा एकदम सुर्ख पड़ी। बीजान ने पहले अलीज़ा का सुर्ख चेहरा देखा, फिर अफरा की जानिब देखा। क्यों, क्या हुआ है? मुकज्जिम ने कुछ कहा? कोई झगड़ा हुआ है क्या? बीजान ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे नहीं बीजान, आपकी बहू ने आपके पोते पर हवाई गुब्बारे चलाए हैं। अफरा बीजान को बताती आखिर में कहकहा लगाकर हंसी। शट अप अफरा, बीजान, ये सब इसकी वजह से हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं था इसके पीछे वो खड़े हैं। अलीज़ा ने फ़ौरन अपनी सफाई दी। अच्छा, मतलब भाई ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला, और चल भी जाए तो क्या हुआ, मैं डरती थोड़ी हूँ किसी से, अलीज़ा एक अदा से कहती बीजान के साथ बैठ गई, ये ध्यान दिए बिना कि बीजान हाथ में फ़ोन पकड़े किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अच्छा, तो आप नहीं डरती? अफरा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, जहाँ मुकज्जिम खड़ा था। हाँ बिल्कुल, मैं तो किसी से नहीं डरती, डरना बस अल्लाह से चाहिए, इंसानों से नहीं। और तुम्हारे भाई तो वैसे भी जिन हैं, जिन्हें डराने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। अलीज़ा अपनी रवानी में बोलती जा रही थी। मुकज्जिम बाहर खड़ा अपनी हंसी दबाए उसकी बातें सुन रहा था, जबकि जहांज़ेब मुकज्जिम का जिक्र सुनते ही कॉल बंद कर चुका था। अच्छा, तो मेरी बेगम मुझसे नहीं डरती? मुकज्जिम की आवाज़ अपने पीछे से सुनकर अलीज़ा झटके से उठी। आप कब आए? अलीज़ा ने अटकते हुए बोला। बेगम, मैं तो आपसे 9 साल पहले आ चुका हूँ। मुकज्जिम भी उसी की टोन में बोलता सामने सोफे पर बैठ गया। आज तुम जल्दी घर आ गए, खैरियत? बीजान ने मुकज्जिम की तरफ देखते हुए पूछा। जी, सोचा कि कोई मुझसे नाराज़ है उसे मना लिया जाए, पर कोई हमें मौका ही नहीं दे रहा मनाने का। मुकज्जिम बोला तो बीजान से रहा था, पर देख अलीज़ा की तरफ रहा था। बीजान देखे, ये मुझे घूरे जा रहे हैं, अलीज़ा बीजान को कहती बीजान के साथ बैठ गई। क्यों घूर रहे हो भाई हमारी बहू को? बीजान ने मसनूई गुस्से से मुकज्जिम को आंखें दिखाते हुए पूछा। लो, अब इतने सालों बाद बीवी मिली है, मैं उसे अब देखूं भी ना, हद नहीं हो गई? मुकज्जिम भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था, जबकि उन दोनों की नोकझोंक से अफरा काफ़ी इंजॉय कर रही थी। आप देखते नहीं हैं, आप घूरते हैं मुझे अजीब नज़रों से। अलीज़ा मुकज्जिम की राज फाश करने को थी, और अभी वो कुछ और बोलती मुकज्जिम फ़ौरन से बोला। तुम्हारे बाबा की कॉल आ रही थी, तुम्हारे फ़ोन पर कमरे में पड़ा है, जाओ बात कर लो। क्या वाकई? अलीज़ा खुशी से बोलती तेज़ी से उठती कमरे की तरफ भागी, जबकि बीजान और अफरा कहकहा लगाकर हंस दी। माशाल्लाह, जब से ये आई है हर वक्त घर में रौनक ही रहती है, जब घर में चहकती रहती है।
तो सारा घर ही रोशन हो जाता है। बीजान मुस्कुराते हुए बोली, सच में भाई, भाभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है। हम हर वक्त घर में मस्तियाँ करते रहते हैं। अफरा की बात सुनते मुकद्दम दिलकशी से मुस्कुराया। वो सिर्फ इस घर की नहीं, मेरे दिल की भी रौनक है। अब एक मिनट भी वो आंखों से ओझल हो, इस दिल का इस दिल से ये कतई मंजूर नहीं। मुकद्दम अपने दिल में कहता खूबसूरती से मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। चले बीजान, मैं चलता हूँ, इजाज़त दे। मुकद्दम बोलता कमरे से निकल गया। अलीज़ा ने कमरे में आकर अपना फ़ोन देखा तो बाबा जी कॉल तो नहीं बाबा जी का कॉल तो नहीं, पर मरियम और आयशा की ग्रुप कॉल आ रही थी। उसने कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया और कमरे से बालकनी में आ गई। तुम बदतमीज़ औरत, ज़रा शर्म ना आई? अकेले निकाह करते हुए। फ़ोन कान से लगाते ही अलीज़ा की कानों में आयशा की आवाज़ गूंजी। क्यों, बाकी का कबूल है, तुमने बोलना था क्या? अलीज़ा भी मज़े से जवाब देती झूले पर बैठी झूलने लगी। खुदा का कुछ खौफ करो, लाली भाई है वो हमारे। आयशा ने फट से जवाब दिया। तो फिर सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्यों फुजुल बकवास कर रही हो? अलीज़ा ने भी सीधी सीधी सुना दी। यार, एक तो तुम लोग लड़ते बहुत हो, चुप कर जाओ। मरियम ने उन्हें चुप करवाना चाहा। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे निकाह की मुबारकबाद देने की बजाय मुझसे उल्टी सीधी बकवास कर रही हो। इतना नहीं पता कि किसी की शादी हो जाए तो उससे तमीज़ से बात करते हैं? अलीज़ा लेज़ मुंह में डालती हुई बोल रही थी। ओहो स्वीट हार्ट, बहुत बहुत मुबारक हो यार, आखिरकार तुम भी शौहर वाली बन गई। पर मुझ पर किसी को रहम नहीं आया। आयशा ने अपना दुख पेश किया। तुम्हारे लिए तो लड़का ऑर्डर पर बनेगा, जैसी नमूनी तुम हो ना, तुम्हें कोई शरीफ इंसान सूट नहीं करता। मरियम ने आयशा की ताज़ा तरीन इज्जत अफजाई की। मरो तुम मरियम, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। तुम बस जैद भाई से मिलवाओ, कि आयशा तपी हुई कहती, जबकि मरियम कहकहा लगाकर हंसती। यार लाली, कब मिलने आओगी? यार, तुम्हें देखे भी इतनी देर हो गई है, अपना दीदार कब करवाओगी? स्वीट हार्ट, आयशा अपनी पुरानी टोन में आती हुई बोली। मैं तो नहीं आ रही, तुम दोनों आ जाओ। और ख़बरदार, अब तुमने मुझे ऐसे बुलाया तो ये तो सिर्फ मेरे शौहर का हक है। अलीज़ा का भी फुल मूड था आयशा को तंग करने का। क्या भाई तुम्हें ये बोलते हैं? आयशा का तो मुंह ही खुल गया। हाँ बिल्कुल, वो तो और भी बहुत कुछ बोलते हैं। वैसे क्या तुम जेलस हो रही हो? तो अलीज़ा ने राजदारी से पूछा। ये गलत है समझी तुम, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, एक बार मिलो तो सही मुझे। आयशा खासी तपी हुई बोली, जबकि अलीज़ा ज़ोर से कहकहा लगाकर हंसी। ओह गॉड आयशा, तुम मेरे शौहर से जेलस हो रही हो? वाह। अलीज़ा हंसी हंसी से लोटपोट हो रही थी। बस कर दो जालिम लड़की, और कितना हंसोगी? हम कल आएंगे तुमसे मिलने और फिर खूब बातें करेंगे। मरियम ने अलीज़ा से कहा। हाँ ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। वो दोनों को खुदा हाफिज़ कहती फ़ोन बंद करके सामने पैर रख दिया और दोबारा लेज़ खाने में मसरूफ़ हो गई। मुकद्दम जो अलीज़ा के पीछे पीछे आया था, उसकी बातें सुनकर हैरान ही हो जाता है और चलता हुआ उसके पीछे खड़ा हो गया। अलीज़ा लेज़ खाती किसी सोच में डूबी हुई थी। जब मुकद्दम ने झूले को पकड़कर पीछे को किया, अलीज़ा एकदम से डरती चीख मारकर उठ खड़ी हुई थी और सामने मुकद्दम को देखकर उसे घूरने लगी। आप अलीज़ा को समझ ही नहीं आई वो अब इसे क्या कहे, जो हर बार उसे बुरी तरह से डरा देता था। जी मैं। मुकद्दम उसे खींचकर दोबारा झूले में बिठाता साथ खुद बैठता हुआ बोला। आप मुझे बार बार डराते क्यों हैं? अलीज़ा ने खौफगी से मुकद्दम को देखते हुए कहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी खुशबू से ही पहचान लिया करो। मुकद्दम उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। खाना खाया तुमने? मुकद्दम ने नरमी से उससे अपनी साथ लगाते हुए पूछा। जी खा लिया था, और मुझे आपसे एक बात भी करनी है, अलीज़ा ने मुकद्दम को देखते हुए कहा। हज़ार करो मेरी जान, एक क्यों करनी है? मुकद्दम मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? अलीज़ा ने तस्दीक चाही। नहीं मेरी जान, मुकद्दम की तरफ से फिर वैसे ही जवाब आया। वो 2 दिन बाद अहमद और अली की बर्थडे है, आप प्लीज़ मुझे मॉल ले जाएं, मुझे गिफ्ट लेने हैं। अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में डरते हुए कहा, जैसे वो उसके बाहर जाने की बात पर गुस्सा कर जाएगा। मुकद्दम उसकी बात सुनते मुस्कुराया। मेरी जान, ऐसे डर कर क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा अपना शौहर हो, सर उठाकर बात किया करो और मैं ले जाऊंगा तुम्हें, फिर हम उनकी बर्थडे विश करने घर भी जाएंगे। सच्ची? अलीज़ा झटके से सर उठाती चहक कर बोली। हाँ सच्ची। मुकद्दम उसके छोटे से नाक पर लब रखते हुए बोला। हम कब जाएंगे? अलीज़ा काफ़ी एक्साइटेड थी। कल जाएंगे और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा।
پھر ہم گفٹ بھی لے لیں گے اور آپ کی شاپنگ بھی کریں گے۔ لیکن میرے پاس تو سب کچھ ہے، ہم بس گفٹ لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ مقدم علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ تو علیزہ نے ناسمجھی میں مقدم کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ علیزہ نے مقدم سے پوچھا۔ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی چلو نیچے کھانا کھانے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مقدم بولتا اس کا ہاتھ پکڑے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ علیزہ اور افرا اس وقت لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب جہاں زیب گھر میں داخل ہوا، وہ وہاں سے گزرتا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر لاؤنج سے آتی آواز اس سے رک گیا اور قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ بھابی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ افرا نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اسکیچ بک ہاتھ میں پکڑے کچھ بنا رہی تھی۔ ہاں ہاں پوچھو بھابی، اگر ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کریں گے، وہ ہمیں مل جائے گا؟ مل جائے، لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ دعاؤں میں تو قسمت بدلنے کی طاقت ہوتی ہے نا، پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ افرا کی بات پر علیزہ مسکرائی۔ ایسا نہیں ہے فری، ہم کسی کو بہت لگن سے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں نہ ملا تو ہم ہار جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مگر وہ دعائیں جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے ہم سے وہ انسان، وہ چیز دور کر دی جاتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ اگر نہ ملنے والا بہترین ہو تو افراح نے پھر سے سوال کیا۔ اگر وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا تو وہ ہم سے دور ہی کیوں ہوتا؟ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، مگر بہترین وہ ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے، اور ہماری قسمت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا؟ ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ وہی ایک خدا ہے جو ہمیں پہلے بہتر دے گا، پھر آزمائے گا، اور جب اس کا بندہ کمزور پڑے گا تو اس سے وہ بہتر چھین کر بہترین دے دے گا۔ علیزہ نے مسکرا کر بولا، جبکہ افرا اس حسین دل کی مالک لڑکی کو دیکھتی ہی رہ گئی جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی تھی۔ بھابی آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ نہیں، دو حرف جواب آیا۔ بھائی سے آپ کو ابھی تک محبت نہیں ہوئی؟ افرا نے پھر سے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے تمہارے بھائی سے محبت ہوئی ہے کہ نہیں، مگر میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے شوہر ہے، آج نہیں تو کل مجھے ان سے محبت ہو ہی جائے گی، اور وہ کوئی عام محبت نہیں ہوگی۔ محرم سے محبت کبھی عام نہیں ہوتی، دل و جان سے اس پر فنا ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے بنائے گئے پاک رشتے پر سب سے زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ ایک طرف کھڑا جہان زیب اس کی باتیں سنتا الجھن کا شکار ہوا اور قدم بی جان کے کمرے کی طرف بڑھائے، اور وہی دوسری جانب کھڑا مقدم اپنی متاع جان کے اتنے خوبصورت اظہار پر اپنی روح تک سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے علیزہ کی جانب دیکھا، وہ آج ریڈ فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے تو اسے نظر بھر کر بھی نہ دیکھا تھا کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ مقدم علیزہ کو شاپنگ پر لے جانے کے لیے جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ سیدھا اندر آتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے لگا تھا، مگر علیزہ اور افراح کی باتیں کرنے کی آواز سے وہیں رک گیا۔ وہاں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مقدم نے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم بھائی۔ افراح مقدم کو آتا دیکھ کر فوراً کھڑے ہوتے ہوئے سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، مقدم جواب دیتا علیزہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا ایک بازو علیزہ کے پیچھے صوفے پر پھیلا دیا۔ علیزہ نے گردن گھما کر مقدم کو دیکھا تو اس نے ایک آئیبرو اچکائی جیسے بول رہا ہو کیا ہوا۔ علیزہ نے اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً نفی میں سر ہلایا اور تھوڑا کھسک کر دور بیٹھی۔ بھائی آپ آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ افراح نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گڑیا، تمہاری بھابھی کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے، اس لیے جلدی آ گیا۔ اب بیگم آپ کے کیا ارادے ہیں؟ مقدم افراح کو جواب دیتا آخر میں علیزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ افراح تم بھی چلو ساتھ۔ علیزہ نے افراح کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ نہیں بھابھی، مجھے تو بی جان کے ساتھ پیکنگ کروانی ہے، وہ پرسوں واپس حویلی جا رہی ہے نا، میں پھر کبھی چلوں گی، ابھی آپ جائیں۔ اچھا، میں بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ علیزہ مقدم سے بولتی فوراً اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی۔ علیزہ تیار ہو کر نیچے آئی تو مقدم پہلے سے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ سیڑھی اترتی نیچے آنے لگی۔ مقدم نے نظر اٹھا کر اس سامنے دیکھا تو علیزہ نے بھی اسی وقت نظریں اٹھائی اور مقدم کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور یہ لمحہ اتنا حسین تھا کہ مقدم کو لگا وہ اس لمحے میں قید ہو گیا ہو۔ نزاکت لے کر آنکھوں میں وہ اس کا دیکھنا، واللہ ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھ نہ دیکھیں۔ چلے، علیزہ کی دھیمی آواز سنتے مقدم کا تبسم ٹوٹا اور اس نے علیزہ کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپائے، اچھی طرح حجاب کیے اور چہرے پر ماسک لگائے
मुकम्मल खुद को ढांपे हुए थी। मुकद्दम अपनी शहजादी की तरफ देखते मुस्कुराया। भला जो लड़की खुद को ढांपने का और अपने खुदा को राजी रखने का हुनर जानती हो तो उसकी हिफाजत खुदा से बढ़कर कौन कर सकता है। चलो। मुकद्दम ने आहिस्ता से उसके माथे पर बोसा दिया और उसे साथ लिए गाड़ी तक आया। फ्रंट डोर खोलकर अलीजा को बिठाया और घूमकर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा दी। दूसरी तरफ जहांज़ेब इस वक्त बीजान के कमरे में उनके सामने बैठा उनके बोलने का इंतजार कर रहा था, जो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। आखिरकार कमरे में छाई खामोशी को बीजान की आवाज़ ने तोड़ा। मैं शादी नहीं करना चाहता बीजान, जहांज़ेब ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। क्यों नहीं करना चाहते? क्या सारी ज़िंदगी अकेले रहोगे? बीजान, बस मैं नहीं करना चाहता शादी, और आप आइंदा मुझसे दोबारा शादी का नहीं बोलेंगी। जहांज़ेब ने साफ गोई की। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बीजान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी बीजान, ये मेरा आखिरी फैसला है और ये नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। और एक और बात जहन नशीन कर लो, हमारे मरने पर हमारा चेहरा देखने का भी हक नहीं रखते तुम। और अब तुम जा सकते हो। बीजान बेहद सख्त संजीदगी से कहती अपना रुख मोड़ गई, जबकि उनकी बात सुनता वो तड़प ही उठा था। बीजान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जहांज़ेब ने फौरन उनका हाथ थामना चाहा, जो बीजान ने झटक दिया। मत कहो मुझे बीजान, नहीं रखते हम तुम्हारे कुछ। चले जाओ यहाँ से और कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। आज हमें हमारी तरबियत का सिला मिल चुका है, बीजान ने रोते हुए बोला। नहीं बीजान, ऐसा तो मत बोले। आपके सिवा मेरा है ही कौन? आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूँगा, खुदारा मुझे खुद से दूर ना करे। जहांज़ेब ने नज़र झुकाते हुए कहा। ठीक है, फिर इस जुम्मा को तुम्हारा निकाह है अफरा के साथ। रुखसती हम 1 माह तक करेंगे। मुकद्दम और तुम्हारी शादी एक साथ होगी। बीजान ने संजीदा लहजे में अपना फैसला सुनाया। ठीक है बीजान, मगर आप सब कुछ जानते हुए भी किसी और की ज़िंदगी मेरे साथ जोड़ रही है। अगर मैं उसे खुश ना रख सका, उसे उसके हक ना दे सका, तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। जहांज़ेब संजीदगी और गुस्से से भरे लहजे में कहता कमरे से निकल गया। मुझे अपनी फरी पर पूरा यकीन है, वो अपनी मोहब्बत से तुम्हें वापस ज़िंदगी में खींच लाएगी। बीजान हल्का सा मुस्कुरा कर कहती खुदा से अपने बच्चों के अच्छे नसीब की दुआ करने लगी। जहांज़ेब गुस्से के आलम में तेज तेज कदम लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था, जब सामने से आती अफरा से एकदम टकराया। उसने पहले अफरा उससे पहले कि अफरा ज़मीन पर सोती, वो उसे बाजू से थाम कर सीधा कर चुका था। आंखें किसी को देकर आई हो क्या? वो जो सामने से आता शख्स नज़र नहीं आता? वो अफरा की तरफ देख कर गुर्राया, जबकि अफरा की जान फना होने को थी। मैंने देखा नहीं, सॉरी। अफरा लड़खड़ाती ज़बान में बोली तो जहांज़ेब उसे एक झटके से छोड़ता आगे बढ़ गया, जबकि अफरा गिरते गिरते बची थी। उसकी इतनी बेरुखी पर अफरा की आंखें बेसाख्ता नम हुई। कहाँ बर्दाश्त होती है इस शख्स की बेरुखी, जो हमें जान से ज़्यादा अजीज़ हो। अफरा अपने आंसू साफ करती बीजान के कमरे की जानिब बढ़ गई। दूसरी तरफ मुकद्दम और अलीज़ा इस वक्त मॉल में मौजूद थे और मुकद्दम अब अलीज़ा को शॉपिंग करवा रहा था। उसे जो जो पसंद आ रहा था वो लेता जा रहा था, जबकि अलीज़ा सख्त उकता गई थी। बस भी कर दे, और क्या क्या लेंगे, मेरे पास आगे इतना कुछ है। अलीज़ा ने अब बेचारगी से कहा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सारी दुनिया खरीद दूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मुकद्दम अब कुछ बैग्स देख रहा था। मुझे भूख लगी है। अलीज़ा उसे अपनी जगह से ना हिलता देखकर फ़ौरन बोली, तो मुकद्दम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और हाँ उसका हाथ पकड़े गार्ड को बैग्स गाड़ी में रखने का कहते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और गाड़ी किसी अच्छे रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ दी। अलीज़ा और मुकद्दम इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जब अलीज़ा को कुछ याद आने पर एकदम उछली। हाय अल्लाह, आज तो मरियम और आयशा ने आना था और मैंने उन्हें बताया भी नहीं कि मैं घर पर नहीं हूँ। अलीज़ा परेशानी से बोली। तो फिर क्या हुआ, हम खाना खाकर चलते हैं घर ही। मुकद्दम ने हल पेश किया तो अलीज़ा कुछ मुतमईन हुई और वो दोनों खाना खाकर घर की तरफ रवाना हुए। अलीज़ा घर पहुंची तो मरियम और आयशा अभी नहीं आई थी। अलीज़ा ने सुख का सांस लिया और फ़ौरन अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में आकर बैग्स रखे और फ्रेश होने चली गई, जबकि मुकद्दम उसे छोड़कर दोबारा ऑफिस जा चुका था। अलीज़ा फ्रेश होकर निकली तो असर की अजान हो रही थी। वज़ू करती नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करके वो अभी उठी ही थी कि धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुला और आयशा अंदर दाखिल हुई, जबकि उसके पीछे मरियम और अफराह दाखिल हुई। यकीनन उन्हें अफराह ही कमरे में लाई थी। ओह माय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? आयशा फ़ौरन से अलीज़ा के गले लगती हुई बोली तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। बेशक उससे अपनी दोनों दोस्तें बेहद अजीज़ थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अलीज़ा ने आयशा से अलग होते हुए कहा।
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यार तुम्हारा कमरा कितना खूबसूरत है। आयशा कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोली, जबकि अलीजा मरियम से मिलने में मसरूफ थी। तुम लोग बैठो तो सही, अलीजा ने उन्हें बैठने का बोला। नहीं, हम बाहर जाकर बैठते हैं। बाहर हम आंटी हमारा वेट कर रही है, बस तुम्हें देखने की जल्दी ही बहुत थी कि यहाँ चली आई। आयशा कमरे से निकलते हुए बोली, जबकि अलीजा हंसती हुई मरियम और अफरा के साथ आयशा के पीछे कदम बढ़ाए। अस्सलामुअलैकुम मामा जान, कैसी हैं आप? अलीज़ा रज़िया बेगम से खुश दिली से मिलती हुई बोली। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? रज़िया बेगम उसे अपने साथ बिठाती हुई बोली। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लाली, तुम अचानक गायब हो गई थी, कसम से हम बहुत परेशान हो गए थे। मरियम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। मैं गायब तो नहीं हुई थी, उमर ने तुम लोगों को बताया नहीं? कि अलीज़ा हैरान हुई थी उनकी बात सुनकर। हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, जाने क्या दुश्मनी है तुम्हारे भाइयों को हमसे? आयशा ने मुंह के अजीब व गरीब डिज़ाइन बनाते हुए कहा। ये सही बोल रही है लाली, हम बहुत परेशान थे। उमर को फ़ोन किया तो उसने बोला तुम कहीं घूमने गई हो और हमसे बात नहीं करना चाहती। फिर हम एक हफ्ते तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, पर तुम्हारा कुछ अता पता नहीं मिला। फिर हम तुम्हारे घर गए तो आंटी से सारी बात पता चली। मरियम ने सारी बात की वजाहत दी। और तुम्हारा वो छोटा शैतान अली, उसने तो हद ही कर दी। हमें तुम्हारा नंबर देने की बजाय पता नहीं किसका दे दिया। और जब मैंने उसे कॉल की तो आवाज़ सुने बगैर ही हेलो स्वीट हार्ट बोल दिया। अब वो कमीना दिन रात मेरा जीना हराम किए हुए है। आयशा ने अलीज़ा को उसके भाइयों के कारनामे बताए, जबकि अलीज़ा का कहकहा बेसाख्ता था। हा 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 हा, वो कहकहा लगाती हंसी और हंसती चली गई। क्या पागल हो गई हो अपने भाइयों के कारनामे सुनकर, जो यूं पागलों की तरह हंस रही हो? आयशा ने जल भून कर जवाब दिया। यार तुम दोनों, तुम तुम तुम्हें उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अलीज़ा से अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। चलो जी, पहुंच गया। यहाँ भी कब्जा गुरूब अली ने घर में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। तो सब ने मुड़कर पीछे देखा, जहाँ अली और अहमद, उमर और आसिम उनकी तरफ चलते हुए आ रहे थे। अलीज़ा तो अपने भाइयों को इतने दिनों बाद देखकर बेहद खुश हुई और उठकर उनसे मिलने लगी। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? आयशा ने दांत पीसते हुए कहा। उससे बड़ा मसला क्या होगा कि आप हमारी बहन पर कब्जा करके बैठ जाती है। अलीज़ा अलीज़ा से मिलते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने उसे एक चपट रसीद की। ये सिर्फ तुम लोगों की बहन नहीं, मेरी बचपन की दोस्त भी है। आयशा ने अली को घूरते हुए कहा। बस कर दो, तुम लोग ये हर वक्त लड़ते ही रहते हो। अलीजा ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा तो वो चुप कर गए और फिर सब मिलकर बातें करने लगे और वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मुकद्दम घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। उसने कदम लाउंज की जानिब बढ़ाए तो आगे पूरी गैंग को देखकर हैरान ही रह गया, जबकि वहाँ का मंजर भी हैरान करने वाला ही था। एलिज़ा के दाएं बाएं अली और अहमद बैठे हुए थे, जबकि एलिज़ा के बिल्कुल सामने आयशा बैठी हुई थी और उनकी आपस में कोई बहस चल रही थी। आप ही इन्हें बोल दे कि आप उनके साथ नहीं बैठेंगी, अली ने एलिज़ा का बाजू पकड़ते हुए बोला। तुम चुप करो चमगादड़ कहीं के, वो मेरी दोस्त है, मेरे साथ बैठे ना बैठे तुम्हें क्या मसला है? आयशा अली को घूरते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मरियम ने मुकद्दम को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुकद्दम अलीज़ा को अपनी नज़रों के हिसार में रखे सामने सोफे पर बैठ गया। अलीज़ा ने एक नज़र अपने दाएं बाएं जानिब बैठे अहमद और अली को देखा, फिर सामने बैठी आयशा को, फिर एकदम से उठी और सीधा जाकर मुकद्दम के साथ बैठ गई और हाथ से उन लोगों को इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो लड़ो अब तुम लोग अच्छे से। जबकि वो तीनों मुंह खोले अलीज़ा को देखने लगे। यार लाली, ये चीटिंग है, आयशा ने अलीज़ा को देखते हुए बोला। और जो तुम लोगों ने 2 घंटों से मेरा सर खाया हुआ है वो क्या है? अल्लाह तुम लोगों का बस नहीं चलता। छड़ी कांटे से मुझे अलग अलग करके अपने पास ही रख लो। अलीज़ा टांगे ऊपर करती सोफे पर आराम से बैठ गई। अलीज़ा की बात सुनते वहां मौजूद सब अफराद का कहकहा बेसाख्ता था, जबकि आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। आयशा अपनी जगह से उठी और मुकद्दम की जानिब आई। भाई आप प्लीज़ वो लड़कों की टीम में बैठ जाए, ऐसे अकेले लड़कियों में बैठे अच्छे थोड़ी लगते हैं आप। आयशा ने मुकद्दम को मिस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा। अलीज़ा आयशा की बात सुनती जल्दी से दोनों हाथों से मुकद्दम का बाजू थाम गई। खबरदार, कहीं नहीं जा रहे आप, और तुम निकलो यहाँ से, अपनी जगह पर बैठो जाकर। अलीज़ा ने पहले मुकद्दम को फिर आयशा को देखते हुए बोला, जबकि मुकद्दम हैरान और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ अलीज़ा को देख रहा था, क्योंकि वो कभी भी मुकद्दम के करीब नहीं आई थी और आज उसने खुद मुकद्दम को छुआ था।
चलो बच्चों, अब ये मस्ती छोड़ो और आकर खाना खाओ। रज़िया बेगम ने सबको आकर खाने का बोला और सब हाँ में सर हिलाते हुए खाना खाने चल दिए। सबको रज़िया बेगम ने ज़बरदस्ती रोका था खाने पर, वरना वो सब तो अब तक जा चुके होते। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। वहाँ मौजूद हालिम साहब और बीजान की मौजूदगी में किसी ने भी कोई शरारत नहीं की थी और चुपचाप खाना खाया था। मुकज्जिम तो मुसलसल अलीज़ा को अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। वो दिन ब दिन मुकज्जिम के हवासों पर छाती जा रही थी। मुकज्जिम बिल्कुल बेबस होता जा रहा था। जितनी शिद्दत से वो अलीज़ा को महसूस करता था, उतनी ही शिद्दत से दिन रात एक किए अपने दुश्मनों को ढूंढने में मसरूफ़ था। उसे कुछ भी करके शादी से पहले खावर को पकड़ना था, क्योंकि जो मुकज्जिम के दिल में अब धड़कनें बनकर धड़कती थी, खावर की नज़र उस पर थी, जो मुकज्जिम को कतई मंजूर नहीं था कि कोई अब आंख उठाकर भी अलीज़ा को देखे। उसकी वहशत हर दिन बढ़ती जा रही थी और ये वो वहशत थी जिससे लोग खौफ खाते थे, मगर घर में दाखिल होने से पहले ही वो वहशत बाहर ही छोड़कर आता था। वो बेरहम दरिंदा सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए था। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़रें सिर्फ अलीज़ा को ढूंढती थी और उसे देखते ही वो सब कुछ भूल जाता था, हत्ता कि खुद को भी। इस वक्त सब बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। आसिम, उमर, अहमद और अली एक साथ बैठे थे, जबकि मरियम, आयशा और अफरा एक साथ बैठे थे और अलीज़ा मुकज्जिम के साथ बैठी थी। सबके हाथों में चाय के कप थे और अलीज़ा के हाथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था। बात सुने, अलीज़ा ने धीमी आवाज़ में मुकज्जिम को बुलाया। जी सुनाए, मुकज्जिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। आप ये चाय क्यों पी रहे हैं? अलीज़ा ने मुकज्जिम के हाथ में पकड़े कप की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मुकज्जिम ने नासमझी में उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरे शौहर हैं तो चाय क्यों पी रहे हैं, जबकि आपको नहीं पीनी चाहिए। और क्यों नहीं पीनी चाहिए? मुकज्जिम को उसका लॉजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और आप तो मेरे शौहर हैं ना, फिर आपको भी नहीं पसंद होनी चाहिए। अलीज़ा मुकज्जिम से धीमी आवाज़ में बोल रही थी। अच्छा, मुकज्जिम ने अच्छा को काफ़ी लंबा खींचकर कहा। फिर तो मसला बन गया, क्योंकि यहाँ तो एक ही मिल्क शेक है। चलो ऐसे करते हैं, मिलकर पीते हैं। मुकज्जिम बोलता उसके हाथ से शेक का ग्लास लिए लबों से लगा गया, जबकि अलीज़ा होंकों की तरह मुंह खोले उसे देखने लगी। मुकज्जिम ने उसे ऐसे देखते ग्लास उसके होठों से लगा दिया और ज़बरदस्ती उसे शेक पिलाने लगा। अलीज़ा ने 2 घूंट भरकर ग्लास पीछे किया तो मुकज्जिम ने ग्लास को रुख अपनी तरफ किया, अलीज़ा से, जहाँ से अलीज़ा ने पिया था, और फिर एक ही घूंट में सारा शेक पी गया। जबकि उसकी इस हरकत पर अलीज़ा की धड़कनें एकदम तेज़ हुई। उसने जल्दी से सबकी तरफ देखा, कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। फिर उसने मुकज्जिम की तरफ देखा। मुकज्जिम ने उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसे आँख दबाई, जिससे अलीज़ा ने फ़ौरन नज़र झुका ली, जबकि मुकज्जिम दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आपी, आज आप हमें कुछ सुनाएं, आसिम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। मैं क्या सुनाऊं? अलीज़ा ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। कोई शेर ही सुना दे, आयशा आपी के लिए। आसिम मुस्कुरा कर बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। ठीक है, मगर ख्याल रहे यहाँ खून खराबा ना हो जाए कहीं, अलीज़ा ने आयशा की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। नहीं होता स्वीट हार्ट, तुम सुनाओ तो सही। आयशा की तो खुशी ही अलग थी। सोच लो, फिर मुझे मत कहना, अलीज़ा ने फिर से बोला। सोच लिया, तुम सुनाओ, आयशा खुश होते हुए बोली। मुकज्जिम अलीज़ा की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में साफ शरारत झलक रही थी। मतलब वो ज़रूर कोई ना कोई शरारत करने वाली थी। ओके, तो अर्ज़ किया है, अलीज़ा सब की जानिब देखते हुए बोली। इरशाद इरशाद, सब ने हाक लगाई। कहानियाँ हैं तो अफसाने बने, शबाब से ही मैं खाने बने। वाह 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 वाह, सब ने हाक लगाई। अलीज़ा ने आयशा की तरफ देखा और फिर से बोली। आप में कुछ बात तो ऐसी है, वरना यूं ही तो नहीं पागल खाने बने। हा 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 हा, सबका कहकहा छत फाड़ था, लॉन में गूंजा, जबकि आयशा ने खूंखार नज़रों से अलीज़ा को घूरा, जबकि वहीं बैठे हालिम साहब और रज़िया बेगम बीजान ने अलीज़ा की तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। बेशक इस छोटी सी लड़की के आने से उनकी ज़िंदगी में रौनक हो गई थी। लाली, तुम रुको ज़रा, आयशा बोलती अलीज़ा की तरफ बढ़ी। अलीज़ा फुर्ती से उठती मुकज्जिम की कुर्सी के पीछे हो गई। आप ही एक और, प्लीज़ प्लीज़, अब की बार, अली बोला। तुम चुप करो चूज़े कहीं के, और तुम निकलो इधर से, आयशा अलीज़ा को घूरते हुए बोली। आप ही बस एक और, अहमद ने भी रिक्वेस्ट की। ओके, पर मेरी जान तुम लोगों के हवाले, अलीज़ा ने सब
की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके। सबकी तरफ से जवाब आया। अलीज़ा ने आयशा की तरफ देखा और फिर बोली, इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को जी भर कर देख लूँ। अलीज़ा ने मासूमियत से आयशा की तरफ देखते हुए बोला तो आयशा को लगा अब ज़रूर वो कुछ अच्छा सा बोलेगी। हाय मैं सदके जाऊँ, आगे बोलो। आयशा सदके वारी जाते हुए बोली, इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को जी भर कर देख लूँ। मुद्दत हुई कोई ज़कूटा ज़कूटा जिन नहीं देखा। हा 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 हा। इस बार मुकद्दिम का कहकहा सबसे पहले नंबर पे था, जबकि वहाँ बैठी यंग पार्टी हंस हंस कर पागल हो रही थी। लाली, आयशा चीख कर बोलती उसकी तरफ बढ़ी, जबकि अलीज़ा फौरन से वहां से भागी। मगर अचानक उसका पाँव मुड़ा और इससे पहले कि वो गिरती मुकद्दिम ने उसे थाम लिया, जबकि वो चारों भाई भागते हुए उसकी तरफ आए। मुकद्दिम ने उसे अपने पास पड़ी कुर्सी पर बिठाया और झुककर पाँव देखने लगा, मगर अलीज़ा ने फौरन पीछे लिया। आप ही अब ठीक है ना मामा मना भी करती है कि इतना ना हंसा करें, मगर आप कौन सा हंस सुनती है, हमेशा ऐसे ही लगवा लेती है। बाद में चोट उम्र फिक्रमंदी से अलीज़ा की तरफ देखकर बोल रहा था, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, तुम सब फजूल में परेशान हो रहे हो। अलीज़ा ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा, नहीं लाली तुम दिखाओ, फिर ही यकीन करेंगे हम। आयशा बोलती हुई झुकी, पागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही हूँ ना कि नहीं लगी चोट, फिर भी फजूल में बोले जा रहे हो तुम लोग। अलीज़ा को अब गुस्सा आ रहा था। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो ना करो। आयशा उसे गुस्सा करते हुए देखकर बोली, तो फिर बैठो जाकर, कुछ नहीं हुआ मुझे। अलीज़ा ने सब की तरफ देखते हुए बोला, नहीं आपी, बस बहुत टाइम हो गया, अब हम निकलते हैं और उन दोनों को भी ड्रॉप कर देंगे, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। उमर अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला और कुछ देर बाद सब लोग चले गए। बेटा आप ठीक हो? हालिम साहब ने अलीज़ा के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। जी बाबा जान मैं ठीक हूँ, आप सब भी आराम कर लें, हमारी वजह से कब से इधर ही बैठे हुए थे। अलीज़ा ने बीजान और रज़िया बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो सब उसकी इतनी फिक्र पर मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखना। वो अलीज़ा से बोलते हुए बीजान और रज़िया बेगम के साथ अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि मुकद्दिम सबको गेट तक छोड़ने गया था। अलीज़ा ने भी उठकर जाना चाहा, मगर उसके एक कदम भी आगे ना बढ़ाया था। दर्द की शिद्दत से वो दोबारा वहीं बैठ गई, जबकि मुकद्दिम ने उसे ऐसे देखा तो फौरन उस तक पहुंचा और उसे बाजुओं में उठा लिया, जबकि अलीज़ा हड़बड़ा ही गई। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। अलीज़ा मज़ाहमत करते मुकद्दिम से बोल रही थी। चुप, बिल्कुल चुप, अब एक लफ्ज़ भी ना निकले मुँह से, वरना तुम्हें यहाँ ही गिरा दूंगा। मुकद्दिम संजीदगी से बोलता उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि अलीज़ा तो उसे संजीदा देखते फ़ौरन चुप हो गई। मुकद्दिम ने कमरे में आकर नरमी से उसे बेड पर बिठाया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अलीज़ा के पाँव वाली साइड पर बैठ गया। मुकद्दिम ने उसका पाँव पकड़ना चाहा तो अलीज़ा ने फ़ौरन पीछे किया, जिससे मुकद्दिम ने खूंखार नज़र से अलीज़ा को घूरा। अगर अब ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुकद्दिम ने बोलते उसका पाँव पकड़ा और उसे हरकत देकर देखने लगा। मुकद्दिम ने पाँव की दाएं जानिब हरकत दी तो दर्द की शिद्दत से अलीज़ा के मुंह से सिसकी निकली, तो मुकद्दिम ने अलीज़ा की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर दर्द के तासुरात थे। कब पहले देख रहा था तब देखने नहीं दिया जब पहले देख रहा था तब देखने नहीं दिया, और अब जब जख्म ठंडा हो गया तब आपको दर्द महसूस हो रहा है। मुकद्दिम ने अलीज़ा को घूरते हुए कहा। वो सब परेशान हो जाते हैं। अलीज़ा मिनमिनाई तो मुकद्दिम ने आंखें छोटी करके उसे देखा। सबकी फिक्र है, अपनी नहीं है। मुकद्दिम ये बोलता एकदम उसके पाँव को हरकत दी तो अलीज़ा की दर्द भरी चीख निकली और आंखें आंसू से भर गईं। मुकद्दिम ने आहिस्ता से उसके पाँव पर ट्यूब लगाई और उसकी तरफ देखा, जिसकी झुकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मुकद्दिम ने फौरन से पहले उसे अपने हिसार में लिया। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, देखना सुबह तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक होगा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। मुकद्दिम ने उसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। अपना ख्याल रखा करो, खुद को मेरी अमानत समझकर, मेरी आती जाती सांसों में बसी हो तुम। तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इसलिए कि तुम पहले अच्छे से मुझे और हमारे रिश्ते को समझ जाओ। मुकद्दिम नरमी से अलीज़ा की पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा का दिल बेसाख्ता धड़का। मुकद्दिम उठा और कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लाइट्स ऑफ करते, बेड पर साइड लैंप ऑन करते अपनी साइड पर लेट गया और अलीज़ा को अपने हिसार में लिए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में अलीज़ा सो गई थी। मुकद्दिम उसे सोता देख कर मोहब्बत की मेहर माथे पर साबित करता आंखें बंद कर गया। वो अब मुकद्दिम की आदी हो गई थी, जब तक वो उसे अपने हिसार में लिए बालों में उंगलियां ना चलाता उसे नींद नहीं आती थी। इसी वजह से वो दिन में नहीं सोती थी, क्योंकि उसे इस तरह नींद ही नहीं आती थी। लेकिन जब मुकद्दिम उसे अपने हिसार में लेता, अपना जादू उस पर फूंकता था, तो वो फौरन सो जाती और उसके सोने के बाद ही मुकद्दिम भी
मुकज्जिम भी पुरसुकून नींद सोता था। दूसरी तरफ जहांज़ेब इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आंखें लाल अंगारे बनी हुई थी, जबकि दिमाग में मुसलसल बीजान की बातें घूम रही थी। अगर तुमने शादी नहीं की तो सारी जिंदगी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, मर भी जाऊं तो भी मत आना, में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुमसे जुम्मा को तुमसे जुम्मा को तुम्हारा निकाह है अफराह के साथ। आह! जहांज़ेब ने सामने पड़ा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। अगर वो किस्मत में नहीं थी तो आई क्यों मेरी ज़िंदगी में? क्यों हुई उससे मोहब्बत मुझे? वो गुस्से के आलम में बोल रहा था जब उसके कानों में अलीज़ा की आवाज़ गूंजी। अल्लाह पाक बेहतर देकर हमें आजमाता है, और जब हम उसके आगे हार जाते हैं तो अल्लाह हमें बेहतरीन देता है। नहीं अफरा, अगर वो हमारे लिए बेहतरीन होता तो हमसे दूर क्यों होता? बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। अलीज़ा की बातें मुसलसल उसके कानों में गूंज रही थी। वो वहीं बेड पर ढह सा गया। ठीक है, अगर आपको यही मंजूर है तो ऐसे ही सही, एक और आजमाइश सही। जहाँ से ऊपर की तरफ देखता हुआ बोला और आंखें बंद कर गया। कब वो ये सब सोचता नींद की वादी में उतर गया, उसे पता ही ना चला। अलीज़ा की आंख मामूल के मुताबिक फजर के वक्त खुली। हमेशा की तरह उसने मुकज्जिम को अपने करीब पाया। आहिस्ता से उसका बाजू खुद पर से हटाते हुए उठी और वज़ू करने चली गई। वो वज़ू करके आई तो मुकज्जिम अभी भी वैसे ही सो रहा था। अलीज़ा उसके करीब गई और उसे आवाज़ दी, मीर उठे, नमाज का वक्त हो गया। अलीज़ा ने आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, मगर मुकज्जिम नहीं उठा। वो दूसरी साइड पर आई और मुकज्जिम के बाजू को हल्का सा हिलाया, मगर वो फिर भी ना उठा। मीर उठे, नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीज़ा उसका बाजू हिलाते हुए बोली। मीर, उसने फिर से पुकारा। मुकज्जिम ने एकदम से आंखें खोली और अलीज़ा की तरफ देखा, जबकि अलीज़ा मैडम कि हमेशा की तरह चौदह तबक रोशन तो हो चुके थे। वो डरकर एकदम उछली और फौरन से पहले पीछे होना चाहा, जो कि मुकज्जिम ने उसकी कलाई पकड़कर रोक दिया। क्या कहा तुमने अभी? मुकज्जिम उसे हल्का सा झटका देता अपनी तरफ झुकाते हुए बोला। मैंने बोला नमाज पढ़ ले। अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। नहीं नहीं, उससे पहले क्या बोला था? मुकज्जिम अब उठकर बैठता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा की कलाई अभी तक उसके ही हाथ में थी। मीर, अलीज़ा ने डरते हुए बोला, जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुकज्जिम को लगा जैसे उस पर किसी ने ठंडा सूर फूंक दिया हो। मुकज्जिम मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़े नरमी से अपने साथ बिठाया। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा है मीर। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा करो। मुकज्जिम उससे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीज़ा ने मुकज्जिम को याद दिलाया तो मुकज्जिम हाँ में सर हिलाता उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वज़ू करके निकला तो अलीज़ा नमाज अदा कर रही थी। उसे एक नज़र देखता अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाता मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुकज्जिम नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो दाद की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। हाँ बोलो दाद, मुकज्जिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। सर, खावर पाकिस्तान आ चुका है। अभी वो अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और ख़बर मिली है कि वहाँ बहुत कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, अपने गार्ड को लेकर फ़ौरन उसके अड्डे पर पहुँचो, मैं भी निकल रहा हूँ। मुकज्जिम दाद से बोलता फ़ोन बंद कर गया और गाड़ी जन से भगाई। अलीज़ा कब से बैठी मुकज्जिम के आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो नहीं आया था। अलीज़ा ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो वो 7 बजा रही थी और मुकज्जिम 5 बजे से गया अब तक वापस नहीं आया था। अभी तक आए क्यों नहीं? रोज़ तो आ जाते हैं जल्दी ही। अलीज़ा परेशानी के आलम में बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और उसका इंतज़ार करते करते अब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। मुकज्जिम खावर के अड्डे पर पहुंचते गाड़ी से निकला तो सामने ही दाद और उसके गार्ड्स खड़े थे। दाद, पहले एसपी से रब्ता करो और उसे अपनी टीम के साथ यहाँ फ़ौरन पहुंचने का बोलो। मुकज्जिम दाद से बोलता अपने कुछ गार्ड्स को इशारा करता अंदर की जानिब बढ़ा। सर, आप अभी अंदर मत जाए, अंदर बहुत ख़तरा है। दाद ने फ़ौरन मुकज्जिम को रोकना चाहा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम एसपी से रब्ता करो फ़ौरन। मुकज्जिम बोलता अपनी गन लोड किए कमर के पीछे लगाता अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि दाद एसपी को इतला देता मुकज्जिम के पीछे ही था। उसके लिए मुकज्जिम की हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी था। मुकज्जिम हल्के कदम लेता दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। बहुत सी लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल से भी कम थी, उन्हें रस्सियों से बांध रखा था, जबकि चेहरे पर और जिस्म पर बहुत से चोटों के निशान थे और उन्हें वहां मौजूद दूसरे आदमियों के कदमों में बिठाया गया था, जबकि वो आदमी हाथ में हराम शराब पकड़े गंदी नजरों से उन बच्चियों को देखते कमीनगी से कहकहा लगा रहे थे। वहाँ तकरीबन 10 से 12 आदमी मौजूद थे और उनमें से कुछ बाहर के आदमी थे जो अपनी ज़बान में वहाँ खड़े आदमी को कुछ बोल रहे थे।
کہاں ہے خاور؟ اسے بلاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آدمی خاور کے آدمی سے بولا تو وہاں موجود ایک کمرے میں سے خاور نکلا اور چلتا ہوا ان آدمیوں کے سامنے آ بیٹھا۔ تمہاری دی گئی رقم بہت کم ہے، یہ خوبصورت تتلیاں اس لیے نہیں دی کہ تم ان کی قیمت کم لگاؤ، تازہ مال ہے جوانی کا۔ خاور کہتا مکروہ ہنسی ہنسا۔ ٹھیک ہے، جتنی رقم تم بولو گے اتنی ہی ملے گی، بس جلدی سے ڈیل کرو۔ ان میں ایک آدمی ایک لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو نیم بے ہوش تھی۔ تو ٹھیک ہے، ایک لڑکی کا 5 کروڑ اور کر لو ڈیل۔ ٹھیک ہے، یہ لو۔ وہ آدمی اس کی طرف ایک پیسوں سے بھرا ہوا بیگ بڑھاتا ہوا بولا تو خاور مکاری سے ہنستا وہ بیگ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر بیگ پکڑنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ پر ایک گولی آ کر لگی جس سے وہ بیگ زمین پر گر گیا۔ مقدم کی گن سے نکلنے والی گولی خاور کے ہاتھ پر لگی تھی اور اسی وقت آمنے سامنے سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ مقدم اور اس کے گارڈز خاور کے آدھے سے زیادہ آدمیوں کو ڈھیر کر چکے تھے۔ خاور نے اپنی گن اٹھائی اور وہاں موجود ایک لڑکی کے سر پر تان دی۔ خبردار، اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو یہ لڑکی جان سے جائے گی۔ خاور لڑکی کو چھوڑ دو اور مجھ سے مقابلہ کرو، مقدم دہاڑ کر کہتا آگے کی جانب بڑھا۔ اگر تم آگے آئے تو میں گولی چلا دوں گا۔ خاور اس لڑکی کے سر پر گن سے زور دیتے ہوئے بولا جبکہ وہ لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ خاور لڑکی کو چھوڑو۔ مقدم شیر کسی دہاڑ میں دہاڑا اور ایک ہی جست میں اس لڑکی تک پہنچا اور اس کا بازو پکڑے آگے کی جانب ڈھکیلا جبکہ خاور گولی چلا چکا تھا۔ خاور کی گن سے نکلنے والی گولی مقدم کے کندھے پر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا داد اس کے بازو پر فائر کرتا ناکام بنا چکا تھا جبکہ خاور کے بچے کچھ آدمی خاور کو لیے پیچھے کے دروازے کی جانب بڑھے مگر آگے ہی پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ مقدم کے کندھے سے خون نکلتا اس کا سفید کرتا بھگو چکا تھا مگر پرواہ کسے تھی۔ مقدم ان لڑکیوں کو گارڈز کے ساتھ باہر بھیجتا وہاں موجود بیسمنٹ کی جانب بڑھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں لال انگارے بن گئی تھی۔ وہاں 50 سے بھی زیادہ کم عمر بچیاں موجود تھیں۔ مقدم انہیں وہاں سے نکالتا باہر کی جانب بڑھا۔ سر، آپ پلیز چلیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، داد نے مقدم کا بہتا ہوا خون دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں داد، تم ان بچیوں سے ان کے گھر والوں کی معلومات لو اور انہیں بحفاظت ان کے گھر پہنچاؤ۔ مقدم بولتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی گھر کی جانب بڑھائی تو اسے اپنے کندھے پر درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی مگر لب بھیج گیا اور گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی جانب بڑھا دی۔ مقدم فارم ہاؤس پہنچا تو زید وہاں پہلے سے موجود تھا جسے کال کر کے مقدم نے فارم ہاؤس آنے کا بولا تھا۔ زید ایک ماہر ڈاکٹر تھا اور اس کا ایک اپنا ہسپتال تھا جہاں وہ ضرورت مندوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی اور کچھ غریبوں کی دعائیں تھیں جو اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتی تھی۔ زید نے مقدم کے کندھے سے گولی نکالی اور بینڈیج کی اور اسے درد کا انجیکشن لگایا۔ تم ابھی اپنے کندھے کو حرکت مت دینا اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا۔ اور گھر میں کسی کو بتایا تم نے؟ زید نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مقدم ایک لفظی جواب دیتا صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا اور آنکھیں موند گیا۔ علیزہ کو بھی نہیں بتایا؟ زید نے پھر سے پوچھا۔ پہلی بات علیزہ نہیں، بھابھی بول، اور دوسری بات میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت حساس ہے، برداشت نہیں کر سکے گی۔ کبھی نہ کبھی تو تیرا زخم دیکھ ہی لے گی، پھر کیا کرو گے؟ زید نے مقدم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جب دیکھے گی تب تک بہتر ہو چکا ہوگا، مقدم نے لمبا سانس لیتے ہوئے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بس ابھی ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں، ہسپتال سے کالز آ رہی ہے۔ زید بولتا ہوا اپنا سامان سمیٹنے لگا اور مقدم کو خدا حافظ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مقدم کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زید اتنی جلدی کیوں گیا ہے، کیونکہ اس نے مقدم کو نیند کا انجیکشن دیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے، کیونکہ اسے پتا تھا مقدم کبھی بھی آرام نہیں کرتا، ضرور کہیں نہ کہیں نکل جائے گا، اس لیے اسے نیند کا انجیکشن دیے وہ وہاں سے نکل گیا۔ مقدم بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا بیڈ تک پہنچا اور گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ دوسری طرف علیزہ مسلسل مقدم کو کالز کر رہی تھی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اب تو اسے رونا آ رہا تھا کیونکہ وہ صبح 5 بجے کا گیا ہوا تھا اور اب رات کے 8 بج رہے تھے۔ علیزہ فون رکھتی کمرے سے باہر نکل آئی اور سامنے لاؤنج میں بی جان اور رضیہ بیگم کو بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا بچہ، فون نہیں اٹھایا اس نے ابھی تک؟ بی جان نے علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جس کا چہرہ اداسی سے مرجھایا ہوا تھا۔ نہیں بی جان، مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے، انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ علیزہ سر جھکاتی اداسی سے بولی۔ میری بچی، شادی سے پہلے وہ اکثر ایسے ہی لیٹ آتا تھا۔
तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगा, चलो उठो और खाना खाओ, दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया तुमने। रज़िया बेगम बोलती अलीज़ा को लिए किचन की तरफ गई और उसे खाना खिलाकर कमरे में सोने के लिए भेज दिया। अलीज़ा मुसलसल करवट बदल रही थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, मुकद्दम जो नहीं था, जो उसके गिर्द मोहब्बत का हिसार कायम करता, तो उसे नींद आती। अलीज़ा ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बजा रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था मगर वो खुद पर कंट्रोल किए हुए थी। मुकद्दम घर में दाखिल हुआ तो रात के 1 बज रहे थे। वो तेज तेज कदम लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की। सामने कंबल में छुपी अलीज़ा पर नजर गई तो लंबा सांस लेता चेंज करने चला गया। अलीज़ा जो सोने की कोशिश में हलकान हो रही थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फौरन कंबल में छुप गई। वो पहचान गई थी मुकद्दम को। इसे उसे महसूस हो गया था कि मुकद्दम ही है, मगर वो उससे नाराज़ थी। भला वो इतनी देर उससे गाफिल कैसे रह सकता था। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब अलीज़ा को कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने आहिस्ता से कंबल हटाकर सामने देखा तो आंखें खौफ से फैल गईं। मुकद्दम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी पट्टी उतारने में मसरूफ़ था, जो कंधे को हरकत देने की वजह से खून से तर हो चुकी थी। अलीज़ा आहिस्ते से उठी और मुकद्दम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुकद्दम उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। जल्दी से पट्टी करता हुआ अलीज़ा की तरफ मुड़ा तो अलीज़ा ने आंसू से भरी आंखें उठाकर उसके कंधे की तरफ देखा। ये आपको क्या क्या हुआ है? अलीज़ा ने लड़खड़ाती नम आवाज़ में पूछा, जबकि नज़र सिर्फ मुकद्दम के कंधे पर की गई पट्टी पर थी। चोट लग गई है बस, छोटी सी। मुकद्दम उसका हाथ पकड़े अपने हिसार में लेता हुआ बोला, नहीं, ये चोट नहीं है। आप बताएं क्या हुआ है? अलीज़ा का लहजा खौफज़दा था। कुछ नहीं हुआ यार, क्यों परेशान हो रही हो? मुकद्दम उसे लिए बेड पर बैठाता हुआ बोला। दर्द हो रहा है ना? अलीज़ा मुकद्दम के कंधे पर की गई पट्टी को अपने हाथ से छूते हुए बोली, जब कब से रुके हुए आंसुओं को वह अब रोक नहीं पाई थी और उसकी आंख से निकलता आंसू मुकद्दम के हाथ पर गिरा था। मुकद्दम ने फौरन उसे अपनी जानिब खींचते जोर जोर से भींच लिया था। मेरी जान, दर्द ऐसे तो नहीं, मगर तुम्हारे रोने से ज़रूर हो रहा है। मुकद्दम उससे अपने साथ लगाए माथा चूमते हुए बोला, आप कहाँ थे सुबह से? अलीज़ा ने अपनी आंसू से भरी आंखें उठाकर मुकद्दम को देखते हुए पूछा, जबकि मुकद्दम का दिल किया जैद को जान से मार दे, जिसने उसे नींद का इंजेक्शन देकर 16 घंटे सुला दिया था। एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, फिर वहाँ जाना पड़ा। काम ज़्यादा बढ़ गया था और मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, इसलिए बता भी नहीं सका तुम्हें। तुम परेशान हो रही थी? मुकद्दम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए पूछा तो अलीज़ा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। क्यों, माँ जी ने बताया नहीं था कि मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ? मुकद्दम ने अलीज़ा पर लब रखते हुए पूछा। बताया था, पर अलीज़ा ये कहती खामोश हो गई। पर क्या? मुकद्दम ने उसके माथे से बाल पीछे करते हुए पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, अलीज़ा ने नज़र झुकाते हुए हल्की सी आवाज़ में बताया, जबकि मुकद्दम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तो अब अच्छा लग रहा है? मुकद्दम उसका गाल चूमता सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला तो अलीज़ा का दिल बेइख्तियार धड़का। चलो आओ सोते हैं, काफ़ी रात हो गई है। मुकद्दम बोलता अलीज़ा को अपने हिसार में लिए लाइट्स ऑफ कर गया। नींद तो उसे आनी नहीं थी, मगर उसे ये भी पता था कि अगर वो ना सोया तो अलीज़ा भी नहीं सोएगी। मीर अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब अलीज़ा ने मुकद्दम को बुलाया। अलीज़ा के मीर कहने पर मुकद्दम की धड़कनें एकदम तेज़ हुई थी। जी जाने मीर, मुकद्दम ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। आपको दर्द हो रहा है ना? अलीज़ा ज़रा सा सर ऊँचा किए उसे देखते हुए बोली। नहीं मेरी जान, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चुपचाप सो जाओ वरना मैं सोने नहीं दूंगा और तुम्हारी ये छोटी सी जान मुश्किल में फंस जाएगी। मुकद्दम साइड लैंप ऑफ करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा उसकी बात का मतलब समझती एकदम से उससे दूर हुई, मगर अगले ही पल वो वापस उसी जगह पर थी। तुम क्यों भूल जाती हो कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? मुकद्दम अलीज़ा का सर अपने सीने पर रखते उसे बेहद करीब करते हुए बोला तो अलीज़ा फ़ौरन आंखें बंद कर गई और कुछ ही देर में उसकी तेज़ चलती सांसों से साबित हो गया कि वो सो गई है। मुकद्दम हल्का सा मुस्कुराया और साइड लैंप ऑन किए उसका चेहरा अपने बाजू पर रखे बगौर उसे देखने लगा। लैम्प की इस मध्यम रोशनी में उसका चेहरा चांद की मानिंद चमक रहा था। मुकद्दम उससे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। कितनी परेशान थी वो मुकद्दम के लिए, उसके दर्द को उससे ज़्यादा खुद में महसूस कर रही थी। मुकद्दम ये सब सोचता हुआ मुस्कुराया और झुककर उसके चेहरे के हर नकोश को अपने होठों से छूने लगा। उसकी गर्दन पर लब रखे लंबा सांस लिया और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता उतारता कितना सुकून लगा था ना।
कितना सुकून रखा था ना खुदा ने इस छोटी सी लड़की में। मुकज्जिम जब जब उसके पास होता उसे अपना वजूद मुकम्मल लगता था। मुकज्जिम ने अभी तक उसकी कुर्बत की चाहना की थी। शायद वो उसकी रूह से इश्क करता था, और रूह का इश्क जिस्म का मोहताज नहीं होता। मुकज्जिम उसके फूले सुर्ख गाल पर अपना नाक ट्रेस करता, मुस्कुराया और उसके होठों को हल्का सा छूकर दोबारा खुद में भींचते हुए आंखें मूंद गया। अलीज़ा को नींद में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गर्म चीज़ के पास बैठी हो और उसकी तपिश इतनी कि उसे अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। अलीज़ा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मुकद्दम उसे अपने हिसार में लिए हुए था। जबकि आंखें बंद थी, अलीज़ा ने उसके बाजू पर हाथ रखा हुआ था, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अपने हाथ पर गर्म कोयला रख दिया हो। अलीज़ा एक झटके से उठी। मुकद्दम को बहुत तेज़ बुखार था, वो निढाल सा पड़ा हुआ था, इसलिए उसका हिसार तोड़े अलीज़ा उठ गई थी। मीर, क्या हुआ आपको? अलीज़ा उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली तो उसका माथा आग की माने झुलस रहा था। या अल्लाह, इन्हें तो इतना तेज़ बुखार है, मैं क्या करूँ अब? अलीज़ा परेशानी के आलम में बोली तो उसे याद आया एक बार अहमद को भी इसी तरह बुखार था, तो मामा ने पूरी रात जाकर उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ की थी। अलीज़ा फ़ौरन से उठी और अपना दुपट्टा लिए किचन में गई, वहाँ से बर्फ़ निकाल कर पानी में डाला और कमरे में आई। मुकद्दम के पास बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, फिर उसकी शर्ट के बटन खोले तो नज़र उसके मर्दाना चौड़े मजबूत सीने पर गई। तो वो इख्तियार तो बेइख्तियार नज़रें झुका गई। अलीज़ा मुसलसल उसके माथे, पेट, सीने और बाजू पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। उसे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था यही अमल करते हुए। वो बार बार किचन में जाती और ठंडा पानी लाती और मुकद्दम को ठंडे पानी की पट्टियाँ करती। फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ते ही अलीज़ा उठी और नमाज अदा की। नमाज अदा करके बहुत से आयात पढ़कर मुकद्दम पर फूंकी और उसके पास ही बैठ गई। अब वो फिर से उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी और साथ साथ कुछ न कुछ पढ़कर उस पर फूंक भी रही थी। मुकद्दम का टेम्परेचर अब काफ़ी बेहतर हो चुका था, यकीनन कुछ ही देर में बुखार भी उतर जाना था। अलीज़ा पानी का बाउल और पट्टियाँ साइड टेबल पर रखती मुकद्दम की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थी। संजीदा रहने वाला ये शख्स सिर्फ उसके लिए रहमदिल था और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। खूबसूरत चेहरा, अनाबी होंठ इस वक्त आपस में पेवस्त थे। बेशक अल्लाह ने उसका नसीब बहुत हसीन बनाया था। आज अलीज़ा के दिल ने उसे गवाही दी थी। वो भी इख्तियार होती उस पर झुकी और माथे से सियाह सिल्की बाल पीछे किए और उसके माथे पर लब रख दिए और पीछे हटकर उसे देखने लगी और हल्का सा मुस्कुराई, और उसे देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आंखों में पड़ने वाली रोशनी की वजह से मुकद्दम की आंख खुली तो अपने जिस्म में थकन थकन सी महसूस हुई। मुकद्दम ने अपनी बाएं जानिब देखा तो एलिजाबेथ ग्राउंड से टेक लगाए सो रही थी। चेहरे पर हिजाब किया हुआ था, जबकि एक हाथ मुकद्दम के बाजू पर और दूसरा अपनी गोद में रखा हुआ था। मुकद्दम उठकर बैठा तो खुद को सामने शीशे में देखा। शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और बाजू भी कोहनियों से ऊपर तक फोल्ड थे। मुकद्दम मुस्कुराया और अलीज़ा को सीधा करके लिटाया और उसके माथे पर लब रखे। वो बेखबर नहीं था, चाहे उसकी आंखें बंद थी, मगर वो अलीज़ा का एक एक लम्स महसूस कर सकता था। बुखार के दौरान मुकद्दम ने एक बार आंखें खोल कर देखा था, तब अलीज़ा हाथ में बाउल पकड़े कमरे से बाहर जा रही थी। बिल्कुल छोटी सी हो और रात भर जाकर मेरा बुखार उतारने में लगी रही हो, इतना जुल्म ठीक नहीं मेरी जान। मुकद्दम दोबारा उसके माथे को चूमते हुए बोला और साइड टेबल से अपना फ़ोन पकड़ा जो कब से बज रहा था। बोलो दाद। मुकद्दम फ़ोन कान से लगाए सीधा होकर बैठता हुआ बोला। सर खावर जेल से भाग गया है, और वो कहाँ भागा है इस बात का कहीं से भी पता नहीं चल रहा। मैं उसे भागे चल रहा है उसे भागे 5 घंटे गुजर चुके हैं, मगर इसका कहीं अता पता नहीं मिल रहा, और एसपी की टीम के भी कुछ बंदे गायब है। मुझे उनका ही हाथ लगता है खावर को भगाने में। मुकद्दम दाद की बात सुनता बालकनी में आया, जबकि आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी और जिस्म की रगें तनी हुई थी। मुझे वो हर हाल में चाहिए दाद। एसपी के कुत्तों को ढूंढो और एसपी को पैगाम पहुंचा दो कि अगर वो इस सब में मिला हुआ हो तो उसकी मौत पक्की है। मुकद्दम गुर्राह कर कहता फ़ोन बंद कर गया और लंबे लंबे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने लगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है खाबर हसन, और तुम्हारे कुत्तों को मैं ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। मुकद्दम अपना सिगरेट सुलगाता हुआ बोला और वहीं बैठ गया। अलीज़ा की आंख खुली तो देखा कमरे में कोई नहीं था और घड़ी 9 बजा रही थी। वो उठी और देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला था। वो अपने स्लीपर्स पहनती बालकनी की जानिब कदम बढ़ाई।
وہ بالکنی میں آئی تو سامنے مقدم بیٹھا آنکھیں موندے سگریٹ پی رہا تھا، جبکہ علیزہ کو یہ دیکھتے حیرت ہوئی تھی۔ جب سے مقدم کے ساتھ تھی اس نے اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی مقدم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مقدم اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے مسکرایا اور آنکھیں کھولتا سیدھا ہو کر بیٹھا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ سامنے رکھی ایشٹرے میں مسل دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک اپنا ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر علیزہ کو آگے کی جانب کھینچا اور وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ علیزہ اس اچانک ہونے والے حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ مقدم کے ایسے کرنے سے اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ میں تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں، پھر چاہے تم میرے سامنے کھڑی ہو یا پیچھے۔ مقدم علیزہ کے دونوں بازو زبردستی اپنی گردن میں حائل کرتا ہوا بولا۔ آپ ٹھیک ہے؟ علیزہ اس کی گردن سے بازو نکالتی ہی بولی تو مقدم نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے مجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا، مقدم بولتا دوبارہ اس کے بازو اپنی گردن میں حائل کر گیا، جبکہ علیزہ کپکپا رہی تھی۔ وہ آپ کو بخار تھا، علیزہ اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولی۔ چیک کر لو، مقدم بولتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت سے علیزہ کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ وہ نیچے سب انتظار کر رہے ناشتے پر، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ مقدم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا اور تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو علیزہ نے نظریں اٹھا کر مقدم کو دیکھا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے پہلے تمہیں کیا پسند آیا تھا؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سب سے پہلے تمہاری آنکھیں، پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی پاکیزگی، پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی کسی نامحرم کے لیے لا تعلقی، پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والا میرا عکس، پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والے میرے خواب، پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی میری محبت، اور مجھے عشق ہے تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی میری محبت کے تمام رنگوں سے۔ مقدم اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرا دی۔ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ علیزہ نے حیرانگی سے مقدم کو دیکھا۔ یہ دھڑکنیں، یہ سانسیں تمہاری ملکیت ہے میری جان، مقدم اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا بولا، جبکہ علیزہ آنکھیں پھیلائے اس کے ہر عمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میر، علیزہ نے مقدم کو دیکھتے ہوئے پکارا جو اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جانے میر، مقدم محبت سے چور لہجے میں بولا۔ باہر کوئی بلانے آیا ہے، پلیز چلے۔ علیزہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو مقدم سخت بدمزہ ہوا اور اسے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فریش ہو کر آؤ جلدی سے، پھر چلتے ہیں، مقدم علیزہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تو علیزہ ہاں میں سر ہلاتی ڈریسنگ روم میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ مقدم بھی اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ علیزہ تیار ہو کر بیٹھی مقدم کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا اور ناشتے کے لیے 2 بار ملازمہ بلانے بھی آ چکی تھی، مگر مقدم ابھی تک نہا کر ہی نہیں نکلا تھا۔ اف اللہ، یہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے؟ علیزہ بولتی ہوئی اٹھی۔ ابھی اس نے 2 قدم بڑھائے ہی تھے کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور مقدم باہر آیا، جبکہ مقدم کو شرٹ لیس دیکھ کر علیزہ نے فوراً آنکھیں جھکا لی۔ مقدم نے ایک نظر علیزہ کی طرف دیکھا جو پیلے رنگ کے ڈریس، ساتھ ملٹی دوپٹہ لیے، ملٹی ہی چوڑیاں پہنے، نامحسوس سی پنک لپسٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے چلتا ڈریسنگ ٹیبل تک آیا اور اپنی شرٹ پہننے کی کوشش کرنے لگا جو کہ کندھے کو حرکت دینے کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے نہیں پہنی جا رہی تھی۔ علیزہ نے نظر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا جو درد برداشت کرتے شرٹ پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہنا دوں؟ علیزہ مقدم کے پاس جاتی ہوئی بولی۔ مقدم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف رخ کیا اور ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کی جانب بڑھائی۔ علیزہ نے شرٹ پکڑی اور اسے پہنانے لگی، مگر وہ مقدم کے کندھے تک آتی تھی، اس لیے اسے بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ایک تو آپ اتنے لمبے ہیں، علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی اور پاس پڑا اسٹول کھینچ کر آگے کرتی اس پر کھڑی ہو کر مقدم کو شرٹ پہنائی۔ اور ایک آپ اتنی چھوٹی ہیں، مقدم اپنا رخ علیزہ کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، بس آپ بہت لمبے ہیں، علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی تو مقدم نے اپنی ہنسی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، تو اگر میں لمبا ہوں تو آپ بھی تو مجھ سے کتنی چھوٹی ہے؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تو چھوٹی نہیں ہوں، دیکھیں، علیزہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مقدم اور اپنے سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جو کہ اسٹول پر کھڑے ہونے کی وجہ سے بالکل برابر تھا۔ مقدم ہاں میں سر ہلاتا علیزہ کو کمر سے تھامے نیچے کھڑا کر گیا تھا، جبکہ علیزہ تو آنکھیں پھیلائے مقدم کو دیکھنے لگی۔ اب بتائیں مسز مقدم، علیزہ کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔
یہ آپ نے چیٹنگ کی ہے، علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ اور میڈم آپ نے نہیں کی کیا؟ مقدم اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس کے بٹن تو علیزہ نے بند کیے ہی نہیں تھے۔ آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا تھا۔ علیزہ فوراً سے ساری بات مقدم پر ڈال گئی۔ مقدم فقط ہاں میں سر ہلا گیا۔ یہ میں خود کر لوں؟ مقدم اپنی شرٹ کے کھلے بٹنز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں میں کر دیتی ہوں، علیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے مقدم کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی، جبکہ مقدم بہت فرصت سے کھڑا علیزہ کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل سرخ ہو جاتی تھی۔ علیزہ نے بٹن بند کر کے ہاتھ پیچھے کیے اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اسے پہلے ہی مقدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ بیگم آپ کا یہ شرمانا گھبرانا مجھے کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مقدم علیزہ کی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کانپ کر رہ گئی۔ مقدم اپنا محبت بھرا لمس اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر چھوڑ رہا تھا۔ مقدم نے سیدھے ہوتے علیزہ کی طرف دیکھا، جو سرخ انار بنی ہوئی تھی اور آنکھیں سختی سے بند کیے ہوئی تھی، مسکرایا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ ابھی وہ اس کے لبوں پر جھکتا دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو علیزہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے مقدم سے الگ ہوئی۔ مقدم کا دھیان دروازے کی طرف تھا، اس وجہ سے ہی وہ اس کا حصار توڑ سکی تھی۔ مقدم نے علیزہ کو سخت نظر سے گھورا، جیسے اسے اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی ہو، جبکہ علیزہ کا سارا دھیان دروازے کی طرف تھا جہاں سے افراح اندر آ رہی تھی۔ بھابھی آپ آئی نہیں ابھی تک ناشتے پر؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ افراح اپنے ہی ٹون میں بولتے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تو تھوڑا اور انتظار کر لیتی، کسی کے روم میں بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ مقدم کی سنجیدہ آواز سنتے ہی افراح ایک دم اچھی۔ بھائی آپ تو مجھے لگا بھابھی اکیلی ہے، افراح منمنائی۔ کیوں تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بھابھی تمہارے بھائی کے ساتھ رہتی ہے؟ مقدم افراح کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ اپنے لب دبائے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، افراح مقدم کی رومانس کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ سوری بھائی، افراح علیزہ کی طرف مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولی تو علیزہ کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اچھا چلے چھوڑے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے روم کے باہر کیمرہ لگوا لیں گے، علیزہ افراح کو دیکھتی شرارت سے بولی تو افراح نے اپنی بھابھی کو گھورا، جو بالکل شرارت کے موڈ میں تھی۔ کمرے کے باہر ہی کیوں بھابھی، پورے گھر میں لگوائیں بھائی، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو ہوائی غبارے کہاں سے آ کر لگتے ہیں، افراح بھی علیزہ والی ٹون میں بولی تو علیزہ ہڑبڑا گئی تھی، جبکہ مقدم کی نظریں علیزہ کی طرف تھی۔ افراح کی بات سنتے ہی اسے فوراً سمجھ آ گیا تھا کہ اس دن اسے غبارہ کس ہستی نے مارا تھا۔ تمہیں تو فضول بولنے کی عادت ہے، مگر مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے میں تو جا رہی ہوں، علیزہ بولتی بغیر مقدم کو دیکھے آگے کی جانب بڑھی، جبکہ افراح بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم، کہاں تک بھاگیں گی؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، مقدم مسکراتا ہوا بولا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا سامان اٹھایا اور قدم نیچے کی جانب بڑھا دیے۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب رضیہ بیگم مقدم سے مخاطب ہوئی۔ کل کہاں تھے تم؟ اور گھر بھی لیٹ آئے تھے، سب خیریت تو ہے؟ رضیہ بیگم مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی ماں جی، بس کام بہت زیادہ تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور فون کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے فون بھی بند ہو گیا تھا۔ اتنے لاپرواہ ہونا چھوڑ دو، اب اکیلے ہو نہیں، تم شادی شدہ ہو، حالم صاحب نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بچے، تھوڑا خیال کیا کرو، اب کل سے بچی اتنی پریشان تھی کہ اس نے کھانا تک حلق سے نہیں اتر رہا تھا، کم سے کم اطلاع ضرور کر دیا کرو۔ می جان مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جبکہ علیزہ ان باتوں سے چھپ سی گئی تھی۔ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھا، جو اپنا سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ جی بی جان، آئندہ بہت خیال رکھوں گا، مقدم جواب تو بی جان کو دے رہا تھا، جبکہ دیکھ علیزہ کی طرف رہا تھا۔ مقدم نے آہستہ سے علیزہ کی گود میں رکھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ علیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا، جو پوری طرح ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ علیزہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر مقدم نے گرفت مضبوط کر دی۔ علیزہ نے التجائی نظر سے مقدم کو دیکھا تو اس نے سامنے رکھی علیزہ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا، مطلب ناشتہ کرو چپ چاپ، یہ ہاتھ نہیں چھوٹنے لگا۔ علیزہ منہ بناتی ناشتہ کرنے لگی، جبکہ اپنے ہاتھ پر مقدم کی حرکت کو محسوس کرتے اس سے ناشتہ کرنا محال ہو گیا تھا۔ کبھی وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا، کبھی اس کے ناخنوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا، کبھی اس کی ہتھیلی پر اپنا نام لکھتا، جبکہ علیزہ اس کے ہر لمس پر اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی رہ گئی۔ جیسے تیسے کر کے علیزہ نے ناشتہ کیا۔ چلے ٹھیک ہے بی جان، میں چلتا ہوں اب آفس، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مقدم بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ علیزہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ ابھی تک مقدم کے ہاتھ میں ہی تھا۔
ٹھیک ہے بیٹا، خیر سے جاؤ، اللہ اپنے امان میں رکھے، اور جاؤ بیٹا۔ تو مقدم کو دروازے تک چھوڑا۔ بی جان علیزہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو علیزہ زبردستی مسکرائی اور مقدم کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ گھر کے داخلی دروازے تک آ کر اچانک مقدم نے علیزہ کی کلائی پکڑ کر دروازے کے پیچھے دیوار سے پن کیا اور اس کے دونوں اطراف بازو کر دیا۔ ہاں تو مسز، آپ کو اتنی فکر کیوں تھی میری کہ آپ سے کھانا ہی نہیں کھایا گیا؟ مقدم علیزہ کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا، جو سختی سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ جواب دو بیگم۔ مقدم اس کا گال چومتا ہوا بولا تو علیزہ نے آنکھیں کھول کر مقدم کو دیکھا۔ آپ شوہر ہیں میرے، اس لیے فکر تو ہوگی نا؟ علیزہ مقدم کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ 1 انچ بھی ہل نہ سکا۔ تو میری جان، شوہر کے موڈ کی ذرا فکر نہیں جو تم خراب کرنے میں کسر نہیں چھوڑتی؟ مقدم اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ کا منہ ہی کھل گیا۔ میں نے کب آپ کا موڈ خراب کیا ہے؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ موڈ ہی تو خراب کرتی ہو، جب قریب آؤں تو پیچھے ہٹے چھوڑے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یہ سب کر کے تم میرا موڈ ہی خراب کرتی ہو۔ مقدم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے لگا، جبکہ علیزہ نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ علیزہ کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مقدم اس کی دھیمی چلتی سانسیں محسوس کرتا نرمی سے پیچھے ہٹا، جبکہ علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانس درست کر رہی تھی، جبکہ چہرہ خون چھلکنے کو تیار تھا۔ تو بیگم، اب تم نے میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش کی تو سزا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ مقدم علیزہ کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، اور شام کو تیار رہنا، تمہارے بھائیوں کی برتھ ڈے ہے، ڈریس بھجوا دوں گا، وہی پہننا۔ مقدم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور علیزہ فقط ہاں میں سر ہلا گئی۔ لگتا ہے میری بیگم کا موڈ نہیں ہے کہ میں آفس جاؤں، مقدم علیزہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کا اشارہ اپنی شرٹ کے کالر کی طرف تھا، جو ابھی تک علیزہ نے نہیں چھوڑا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے علیزہ نے جھٹکے سے اس کی شرٹ کا کالر چھوڑا۔ شوہر کو خدا حافظ نہیں بولنا کیا؟ مقدم اسے نکلتا دیکھ کر بولا۔ خدا حافظ۔ علیزہ بولتی جلدی سے اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے نہیں، مقدم بولتا جھکا اور چہرہ علیزہ کے چہرے کے قریب کیا تو وہ ایک دم سے گھبرائی۔ پلیز چھوڑے، مجھے جانا ہے، علیزہ مزاحمت کرتی ہوئی بولی۔ ایسے تو بالکل نہیں بیگم، پہلے مجھے صحیح سے خدا حافظ بولو، مقدم اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے آنکھیں بند کریں، علیزہ لڑکھڑاتی آواز میں مقدم سے بولی تو مقدم نے مسکرا کر اپنی گرفت ہلکی کی اور آنکھیں بند کی۔ علیزہ نے آہستہ سے اپنے لب مقدم کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اپنی محبت کے پہلے لمس کو مقدم نے اپنی روح کی گہرائیوں تک محسوس کیا۔ علیزہ اس کی گرفت ہلکی ہوتی محسوس کرتی فوراً سے اس کا حصار توڑتی ہوئی بھاگی، جبکہ مقدم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آج عجیب سی چمک تھی، اور وہ چمک علیزہ کی محبت کی تھی، جو اس نے اپنے لیے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ آخر وہ ایک نظر سامنے ڈالتا جہاں سے علیزہ گزری تھی، باہر کی جانب بڑھ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں اور کیا لکھا ہے۔ ناول تو بہت پیارا ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ناول اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔